Good morning, children. This is Karan sir, and you are watching online classes of Scottish Public School. Today, this video lecture is going to be for the class 7 students, and we are going to continue this chapter of geography, chapter 1, that is our environment. It is for class 7 students, and today we will take this chapter ahead where we left it in the last lecture. So I request all the students to please go on to page number 98 and look at the topic biosphere. Okay, so today we are going to have a look at this biosphere. Okay, everybody is on the same page, I hope, and I hope you all are well and safe with your family. Stay home, use mask, and don't go outside if it is not very necessary. So let's start the chapter. Biosphere. Biosphere means the area where the life exists. Okay. The definition of the biosphere is the narrow zone where land, water, and air come in contact with each other is called the biosphere. Where the land, air, and water is on the land and land is itself on the land. Along with that, 5 to 10 years, 50 feet, 60 feet, 100 feet. So that area where the life exists, like we, animals, creature, birds, plants, small plants, big plants, trees, forest, everything where exists these things, that area is known as biosphere. Importance of the biosphere. Why it is important? Biosphere provides the earth with life as it is the only domain where living beings exist. They range from the microscopic organism to huge trees, animals, and humans. This great variety of life on earth is called the biodiversity. धरती के ऊपर जो बड़े बड़े पशु पक्षियों से लेकर के जो ऐसे भी जीव हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वैसे जीवों को लेकर के बड़ी बड़ी हाथियों से लेकर बड़े बड़े पेड़ पौधों से लेकर जंगलों का बड़ा बड़ा अंबार, इंसानों से लेकर के छोटे छोटे नन्ही नन्ही चींटियां, सभी को हम जोड़ दें, ये जो पूरी जो वैरायटी है इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, यानी जैविक विविधता। जीवों में जो विविधता है, जो डिफरेंसेस है, इसे ही हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। The components of the biosphere are divided into two major groups, the plant kingdom and the animal kingdom. They are interdependent and they also depend on the biosphere for survival. पूरी पृथ्वी को अगर दो भागों में बांटो तो एक है प्लांट किंगडम, दूसरा है एनिमल किंगडम। प्लांट में जितने भी जीव जंतु है, छोटी हरी घास से लेकर के बड़े बड़े बरगद के वृक्ष तक, नन्ही नन्ही पौधों से लेकर धनिया के पत्तों से लेकर के फल सब्जियां, बाजार में जितने भी गेहूं धान जितने भी तरह की पैदावार फसलें होती है, जो भी पौधे फसलें उगाई जाती हैं, इन सारी चीजों को हम प्लांट्स किंगडम का हिस्सा मानेंगे। और जितने भी जीव जंतु हैं इंक्लूडिंग हम इंसान, सभी लोग क्या है, एनिमल किंगडम के हिस्सा है, हम उनका ही एक अंग है। दे आर बायोस्फीयर, तो हम लोग सभी लोग किस पर डिपेंड करते हैं, बायोस्फीयर पर ही डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड इन टर्न डिपेंड ऑन द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। हम लोग इसी बायोस्फीयर, इसी ही जीवमंडल पर ही हम डिपेंड करते हैं अपनी जिंदगी को जी पाने के लिए। इकोसिस्टम, एन इकोसिस्टम इज द डिस्टिंक्ट जोन इन द बायोस्फीयर दैट हैज its own physical and biological environment. It may be as large as ocean and as or a forest or as small as a pond or a field. एक बड़ा सा जंगल भी हो सकता है इकोसिस्टम के लिए जिम्मेवार, और साथ ही साथ एक बड़ा सा महासागर भी हो सकता है, साथ साथ छोटा सा तालाब और छोटा सा एक फील्ड भी इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए इंपॉर्टेंस रोल निभा सकता है। Each ecosystem is formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical environment in which they live. जिस तरह के पर्यावरण में जिसमें हम रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं, इन्हीं चीजों को हम अपना एक इकोसिस्टम कहते हैं। The abiotic and abiotic component of an ecosystem are linked to each other by the transfer of energy and matter. क्या होता है,
जिन चीजों को हम छोड़ते हैं, जैसे हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे लेते हैं, वो देते हैं हमें ऑक्सीजन, हम लेते हैं, सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। इसमें बायोटिक और अबायोटिक भी होते हैं। बायोटिक मतलब जो जो जीव से जुड़े हुए हैं, और जो अबायोटिक जैसे कि नदियां, पहाड़, पर्वत, मिट्टी, खेत, ये सारी चीजें। In every ecosystem, there is a perfect balance or equilibrium in the transfer of energy and matter among the different components. This is known as ecological balance. क्या होता है कि जो भी चीजें हैं पर्यावरण में, उनमें हम लोगों में एक संतुलन बना रहता है। हम उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जितना कि पेड़ ले सकते हैं। पेड़ हमें हमारे काम आवश्यकता अनुसार हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, और सभी चीजों में एक बैलेंस बना हुआ है। यदि हम सारे पेड़ काट दें तो लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा, और सारे लोग मर जाएं तो पेड़ों का भी जीना मुश्किल होगा। दोनों ही के बीच में जो एक संतुलन रहता है, इसे हम इक्विलिब्रियम या फिर इकोसिस्टम बैलेंस इन द इकोसिस्टम कहते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है इसे हम देखेंगे। ह्यूमन बीइंग्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। इनफैक्ट ह्यूमंस आर द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म हु हैव कॉन्शियसली अल्टर्ड द एनवायरनमेंट टू सूट देयर नीड्स। इंसान ही मात्र एक ऐसा जीव रहा है जिसने अपनी जरूरतों के हिसाब से पूरी पर्यावरण को बर्बाद किया है, तहस नहस किया है, खराब किया, बनाया है, बिगाड़ा है, सारा कुछ किया है। हमें हमारे सपोज दैट हमारी एक जमीन है जिसमें बगीचा हमने लगा रखा है। कल को उस बगीचे में हम बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, हमें पेड़ों को काटना पड़ेगा। मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा मुझे पेड़ काटने चाहिए या नहीं, बल्कि मेरी जमीन है, मुझे तो बिल्डिंग चाहिए, पेड़ काटने ही होगा, मैं एक बार में काट देता हूँ। ऐसा क्यों हम लोग करते हैं? क्योंकि इंसान की जरूरतें कभी कभी पूरी नहीं होती और जरूरतें रोज बरोज बढ़ती जाती हैं। एक परिवार में एक आदमी है, कल को चल के 50 साल बाद उस एक आदमी से उसके 10 लोग हो जाते हैं। तो इस तरह से आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, जमीन नहीं बढ़ती। इसलिए लोग पेड़ पौधों को काटते रहते हैं, पर्यावरण को अपने अपने हिसाब से तोड़ते मड़ोड़ते रहते हैं। दूसरे जीव जंतु, गाय कभी पेड़ काटने नहीं जाती, गाय कभी जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचाती। कोई दूसरे जीव जंतु पर्यावरण को किसी प्रकार का उतना क्षति नहीं पहुंचाते जितना हम पहुंचाते। Early humans lived in the natural environment and adapted themselves according to their surroundings. जिस तरह का पर्यावरण होता था उसके हिसाब से लोग अपने आप को ढाल लेते थे। परंतु आज का मनुष्य ज्यादा चतुर हो जाने के कारण वो अपने आप को पर्यावरण के हिसाब से नहीं डालता, बल्कि पर्यावरण को अपने हिसाब से डाल देना चाहता है। With the passage of time, the requirements of the human beings increased. In order to fulfill their needs, humans have modified their natural environment through various activities without realizing its adverse effects. मनुष्य पर्यावरण को उस तरह नुकसान पहुंचाता रहता है और उसके होने वाले दुष्परिणामों की चिंता नहीं करता। पेड़ों को काट देना बहुत आसान है, लेकिन पेड़ों के काटने के बाद हमारे पर्यावरण में होने वाली जो क्षति है वो अपूरणीय क्षति है, उसे कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन उस परिणाम को गंभीरता से कोई नहीं लेता, उसकी चिंता कोई नहीं करता। आज हम देख पा रहे हैं पूरी दुनिया बीमारी से जूझ रही है और ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। लोग ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ रहे हैं। आज दिल्ली, मुंबई के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की किल्लत देखी जा रही है। आप न्यूज देखेंगे, ऑक्सीजन 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 का पूरे सारे न्यूज चैनल्स पे ऑक्सीजन की चर्चा चल रही है। ये ऑक्सीजन आता कहां से? ये पेड़ पौधे से आता है। तो ऑक्सीजन चाहिए लेकिन पेड़ पौधे नहीं चाहिए, कैसे हो सकता भाई? आपको तो ऑक्सीजन चाहिए, पेड़ों को बचाना पड़ेगा, पेड़ों को लगाना पड़ेगा, पेड़ों को उगाना पड़ेगा, पेड़ों को संरक्षण देना होगा। Farming, grazing, mining, lumbering, industry, transport and the construction are some human activities that has affected the natural environment most. This has resulted in the disruption of the ecological balance. Degradation of the environment has been brought about primarily by the human interference. Therefore, we need to be sensitive and aware of the various environmental problems and take care of not to destroy our environment any further. हम अपने बहुत सारे क्रियाकलापों से, जैसे कि फार्मिंग से, एग्रीकल्चर से, जानवरों को घास चराने से लेकर के माइनिंग से लेकर लिम्बरिंग यानी पेड़ों को कटाकर, पेड़ों को काटकर जो हम फर्नीचर्स बनाते हैं, इन सारी चीजों की गतिविधियां, कारखाने लगाने से लेकर ट्रांसपोर्ट की गतिविधियां, सड़कें बनाने के लिए जंगलों को काटा जाता है, बिल्डिंगें बनाने के लिए जंगलों को, पेड़ों को काटा जाता है। इन सभी गतिविधियों पर जब तक हम लगाम नहीं लगाएंगे तब तक हम अपने एनवायरमेंट को सुरक्षित बचाकर नहीं रख सकते। इसलिए जरूरी है कि जो अब तक हमने गलतियां की हैं उन गलतियों से हम सबक लें और आगे अपने एनवायरमेंट को बचाने का पूरा प्रयास करें।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और ये साथ ही हम चैप्टर को तो कंक्लूड कर रहे हैं, समाप्त हो रहा है ये चैप्टर हमारा। मैंने आप लोगों को कहा था ABC बनाकर भेजने के लिए, आज मैं आपसे कहता हूँ D और E भी आज आप बनाने का प्रयास करेंगे। अगले क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर्स के PDF सब दिए जाएंगे ग्रुप में, और उसको आप फेयर नोटबुक में लिखेंगे। एक बात और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो भी चीजें मैं देता हूँ बीच में, क्लास चैप्टर चल रहा है उस बीच में जो भी होमवर्क देता हूँ, इन होमवर्क्स को आपको रफ कॉपी में बनाना है, और जो फेयर नोट दूंगा, जब क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको, उनको आपको फेयर नोट। धन्यवाद।